Hello students, today we are going to discuss some periodic properties. Uh, Number one, we are going to discuss about atomic size. So atomic size is what like this is, suppose this is an atom and inside there is nucleus. This is center is nucleus and outside the nucleus there are shells. There are shells in which electrons revolve. We very well know. So in this shells, we have some electrons revolving around the nucleus. So like this. And this is the center of the atom, which is called as nucleus. So in this atom, if we calculate the radius, that is the distance from the center of the nucleus to the outermost shell. What is the distance between the outermost shell and the nucleus and the center of the nucleus? Is called atomic size or atomic radii, whatever you call. Okay, so this distance we are going to deal with this. So as we move from left to right in a periodic table and from top to bottom, there is some variation with this distance. Let us talk about hydrogen, lithium, sodium, potassium. So if we are moving down the group, that is from top to bottom, if we are moving down the group from top to bottom, what we notice that if we look the electronic configuration of hydrogen, it is 1, lithium 2 1, sodium 281, and potassium is 2881, and so on. So what we are noticing here is, here in hydrogen there is only one shell. In lithium here are 2 shells, sodium 3 shells, potassium 4 shells. So as we are moving downward, what we notice that number of shells are increasing. And if we look in depth, we will find that one shell is increasing. That is, on moving from hydrogen to lithium, there is increase in number of shell. And how much increase is there? One shell. So one shell is adding as we move downwards. So atomic size is the distance between the center of the nucleus and the outermost of shell. So on moving downward, as the number of shells are increasing, suppose here, suppose in hydrogen, it's a situation like this. Okay, in lithium, I have one nucleus and we have 1, 2. In sodium, what we will have? 1, 2, 3. Okay, 2, 8 and 1. So hydrogen, lithium, sodium, a rough estimate. So if we compare the atomic size of these three, in hydrogen, this is the atomic size. In lithium, this is the atomic size. Sodium, this is the atomic size. So it is quite obvious that as we go down the group, the atomic size increases. And why it happens so? Because atomic size increases on moving down the group. And the reason is being, what is the reason? Because number of shell
increases. So as the number of shell increases, the distance of the center of the nucleus, distance of the outermost shell from the center of the nucleus increases. So atomic size increases. So collectively, we can say atomic size increases on moving down the group. Now an interesting fact is what happens on moving across the period. Across the period, that is on moving left to right. So this is a very important trend to understand conceptually. So on moving left to right, what happens? Suppose I take some example: lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. Yeah. So here it is 2, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 8. So what we will observe here that suppose in lithium I say 2, so let first we draw all the so here it is. So lithium के अंदर हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1, 2, 3. फिर ऐसी बेरिलियम में 2, 1, 2. फिर ऐसी बोरोन में 2, 3. कार्बन में, ठीक है, और नाइट्रोजन में 2, 5. इस कंसेप्ट को अगर हम एक बारी अच्छी से समझ लेंगे ना, तो हमें आगे कभी दिक्कत नहीं होगी. तो इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ताकि आप अच्छे से एनालिसिस करो कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर. तो इस तरह से ये हमारे सारे जो एलिमेंट्स हैं उन सबके ऑक्टेट, उन सबके शेल हमने ड्रॉ करे हैं. और अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे अगर एटॉमिक साइज की बात हमें करनी है तो एटॉमिक साइज तो ये होता है. अब आप मेरे से कहोगे, यू विल से टू मी कि एज द नंबर ऑफ शेल दैट इज R2, so the distance should be constant, atomic size should be constant or same for all of these. But actually it is not the correct answer or not the correct approach, because on moving left to right in a periodic table, actually atomic size decreases. Atomic size decreases, and not only decreases, I would like to say that a very good word, gradually decreases. Atomic size decreases gradually on moving left to right across the periodic table. But how it happens? Question is why it is so? Because the number of shells remain same. So on what parameter we are deciding that the atomic size is decreasing? Because number of shells are same. So now I would like to say that for checking the trends of atomic size, you have to check two things. First, number of shells, and number second, Z effective, that is effective nuclear charge.
we are going to talk about this very soon. So these two things you have to check, that is number of shell and Z effective. And you have to check both of these properties. On moving down the group, this property is dominant. On moving down the group. And on moving across the period, this property is dominant. So here we are talking about across the period. So we have to check this as well, Z effective. On moving across the period, the Z effective is dominant. We have to check both of these, obviously, but on moving across the period, this Z effective is dominant. The effect of Z effective or increase in Z effective is dominant over the increase or number of shells. So we have to check which property is dominant, and on the basis of that, we have to correlate it with atomic size. So we are going to discuss it. So Z effective. What Z effective is? It is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge. So as the name represents effective nuclear charge, what does nuclear charge means? Nuclear charge means charge on protons. Because in nucleus we know very well that neutrons are uncharged and protons are positively charged. So charge on protons. That is nuclear charge, and effective means the total charge of protons. We can understand for sake of our convenience that charge on protons is collectively called as Z effective. So now if I say this is my approach. So if I say this, that you have to calculate the number of protons and its value is giving you a Z effective. So we can say as the number of protons increases, as it's my approach, as the number of protons increases, Z effective increases. Because actually Z effective is the collective nuclear charge. So what this increase in nuclear charge produces? So Z effective is the effective pull of nucleus, that means proton, felt by electrons revolving in outermost shell. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो न्यूक्लियस, देखो प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज है. सपोज यहाँ पे आपके पास प्लस 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 इस तरह से प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के सेंटर में, ठीक है, और बाहर क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जैसे, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से. तो ये जो पॉजिटिव है सारे ये, तो इसका जो टोटल एक तो सारे एक साथ है, तो मतलब यूनियन इज स्ट्रेंथ बोलते हैं. तो ये सारे जो इनका ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कहीं ना कहीं किसको अट्रैक्ट कर रहा है? इन इलेक्ट्रॉन्स को. और इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज है? नेगेटिवली चार्ज है यहाँ आपके इलेक्ट्रॉन्स. तो वी नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेंगे? इन सब इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेंगे ना अपनी तरफ. अब देखो ये पॉजिटिव सारे एक साथ हैं और यूनियन इज स्ट्रेंथ कहते हैं, तो इनकी जो एकता है उसके आगे झुकना पड़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन्स को भी. तो क्या होगा? नहीं तो आप ऐसे भी कह सकते थे भाई जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही क्या होते हैं आपके, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन्स भी खींच सकते थे इस प्लस को, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि प्रोटॉन खींच रहे हैं. क्यों? क्योंकि प्रोटॉन फिक्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो घूम रहे हैं इधर और सारे एक साथ है, यूनियन इन स्ट्रेंथ. तो इनका जो ये कलेक्टिव चार्ज है, मतलब ये जो इनकी जो फोर्स है उसे क्या बोलते हैं हम? जेड इफेक्टिव या न्यूक्लियर चार्ज. न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होता है, और ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको अपनी तरफ क्या करेगा? ये खींचेगा. क्यों खींचेगा? क्योंकि भाई ये प्लस है और ये माइनस चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है.
तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसकी वजह से ये खींचते हैं। हालांकि जैसे जैसे हम दूर जाते रहते हैं न्यूक्लियस से, तो इसका जो फोर्स है, मतलब ये न्यूक्लियर फोर्सेस होती है, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है, वो थोड़ा कम होता है अभी इनका इफेक्ट, लेकिन फिर भी कुछ तो होता है। तो यहाँ पे इस तरह से ये इसको खींचेंगे, और खींचेंगे तो क्या होगा कि थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आपको, और हमें कहाँ देखना है, ये खींचेंगे तो सभी को, लेकिन हमें कहाँ ऑब्जर्व करना है, आउटर मोस्ट शेल। देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो सभी पे लगेगा, सभी इलेक्ट्रॉन्स पे, लेकिन हमें कहाँ ऑब्जर्व करना है, अपना कंसेप्ट जानने के लिए हमें खाली आउटर मोस्ट शेल की तरफ ही देखना है अभी फिलहाल। ये मेरा अप्रोच है ना। तो द इफेक्टिव पुल ऑफ न्यूक्लियस फेल्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन आउटर, मतलब जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उस पे न्यूक्लियस का जो पुल है वो कितना लग रहा है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। एक्चुअली ये डेफिनेशन पूरी एग्जैक्ट सही नहीं है, लेकिन हमें ये माननी पड़ेगी ताकि हम वो समझ सके कि भाई एटॉमिक साइज का जो ट्रेंड है ग्रेजुअली डिक्रीज क्यों करता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, और हमने ये भी बोला था कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे इंक्रीज करेंगे तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो अट्रैक्टिव फोर्स भी तो ज्यादा हो जाएगी ना। तो इसको समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, मैं हमेशा अपने सभी स्टूडेंट से जहाँ भी मैं पढ़ाता हूँ शेयर करता हूँ, तो होपफुली वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा उससे। सपोज दिस इज ए बार मैग्नेट, यू नो मैग्नेट इज लाइक दिस, दिस इज ए बार मैग्नेट, और इस यहाँ पे एक आपके पास क्या है, सर्कल है, और सर्कल क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग मतलब कोई वायर है अच्छा सा, इतना ज्यादा रिजिड भी नहीं है और इतना ज्यादा मतलब फ्लेक्सिबल भी नहीं है, ठीक ठीक है। और इसमें आप क्या करोगे, इसमें सपोज करो आपने कुछ नेल्स लगा दिए, आयरन नेल्स, इस तरह से, मतलब आयरन नेल्स आपने लगा दिया, ठीक है। और सपोज करो आपने एक और सर्कल लिया, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा मतलब ड्राइंग मेरी ऐसी है, सर्कल बना नहीं सही से, देखते हैं यहाँ पे कोई ड्रॉ करने का ऑप्शन है क्या, चलो कोई बात, नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हमने सर्कल लिया एक दूसरा, और इसमें क्या करा, इसमें भी हमने कुछ आयरन नेल्स लगा दिए, ठीक है। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो दिस इज फ्लेक्सिबल रिंग, फ्लेक्सिबल रिंग, दिस इज नॉन मैग्नेटिक फ्लेक्सिबल रिंग, and these are iron nails. This is a very very good example. Okay, so what we will do, this is case 1, this is case 2. We are actually we have measured the radius of this, okay, we have measured the radius of this. In case 1 the radius is r1, and here the radius is suppose capital R1. Okay. Initially when the system, when we have just not executed what we are going to do, so the initial radius is R1 without any disturbance. So what we are going to do, we are actually going to place this bar magnet inside this. So after placing magnet inside the circle, जब हम इस मैग्नेट को इसके सेंटर में रख देंगे, ठीक है, एज्यूम करो आप, ये मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही एज्यूम करो, और जब रख देंगे इसके सेंटर में इस मैग्नेट को, तो क्या होगा, आप थोड़ा सोचिए, कुछ तो होगा ना, मैग्नेट है और वहां पे आयरन नेल्स है, तो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्ट करेंगे ना। तो क्या होगा कि जब हम इस मैग्नेट को यहाँ पे रखेंगे इसके सेंटर में, तो क्या होगा कि आयरन नेल्स इस मैग्नेट के पास आने की कोशिश करेंगे,
सपोज करो मैग्नेट को मैंने फिक्स ही कर दिया है ना, तो आयरन नेल्स मूव करेंगे, और मूव करेंगे क्योंकि रिंग आपकी ये फ्लेक्सिबल है, तो थोड़ा सा तो कॉन्ट्रेक्शन होगा ना। क्या लिख दूं मैं, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, आयरन नेल्स विल कम a bit come closer towards uh, the magnet, will try to come closer towards the magnet, therefore result क्या होगा आपका, the ring contracts, मतलब थोड़ा सा श्रिंक करेगी रिंग ना, द रिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, और रेडियस क्या हो जाएगा आपका, न्यू रेडियस जो भी है उसको हम बोल सकते हैं r-1, न्यू रेडियस r-1, सपोज r-1 आई एम टेकिंग, ठीक है, विल बी लेस देन r1, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हुआ क्या है कि आपने जब ये इस तरह से करा, तो जो नया रेडियस आपका जो आएगा r-1, वो क्या होगा आपका r1 से छोटा होगा, जो इनिशियल रेडियस है। इसका मतलब सिंपल सा है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, सपोज करो कि केस 2 जो लिया था मैंने, वहां भी रेडियस r1 ही था, वहां भी रेडियस r1 ही था, उसकी सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब हम मैग्नेट रखेंगे इस केस में भी, तो क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा, और अट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और जो r1, जो न्यू r1 आएगा वो छोटा होगा किससे, सपोज r1 डैश आया, r1 डबल डैश, वो भी किससे छोटा होगा, r1 से। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ज्यादा छोटा होगा। यहाँ एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जब ज्यादा आयरन नेल्स होंगे हमारे पास, तो कॉन्ट्रेक्शन भी ज्यादा होगा, है ना। ज्यादा आयरन नेल्स है, अब जितने आयरन नेल्स हैं, सपोज करो यहाँ पे आयरन नेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एज्यूम कर लेता हूँ मैं यहाँ पे जेड इफेक्टिव भी कितना होगा, +8, और यहाँ पे जेड इफेक्टिव कितना होगा, +3। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है, एक्चुअली इसको मैं इलेक्ट्रॉन्स की तरह एज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स 8 है तो प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 8 ही होंगे, तो जेड इफेक्टिव यहाँ पे +8 है, और दूसरे केस में कितना है, +3। तो इसका मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव भी आपका क्या है, जितना ज्यादा हो जाएगा उतना ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन के चांसेस बनते हैं, तो यानी उतना ज्यादा श्रिंक भी होगा साइज, ठीक है। और ये एक्चुअली बहुत थोड़ा ही श्रिंक होता है, हम देख रहे हैं इसमें, इसलिए हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा श्रिंक हो रहा है, बहुत ग्रेजुअली इसमें लिखा था, ग्रेजुअली डिक्रीज, इस तरह से। और सपोज करो कि आपने, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो मैग्नेट आपने लगाई है, अगर आप एक काफी अच्छी खाती पीती मतलब मैग्नेट आप इसमें लगाओ, मेरा कहने का मतलब है, आप थोड़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर इसमें लगाओ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, अगर सेम केस है और आपने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट अगर आपने यहाँ पे लगा दिए, इफ यू रिप्लेस दिस स्मॉल मैग्नेट विद दिस stronger magnet, so what will happen, a more contraction will be felt, है ना, more contraction, अगर आप ये वाली मैग्नेट यूज करते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको खाली ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसी तरह से जो Z इफेक्टिव है, यानी यहाँ जो ऊपर हमारा केस है Z इफेक्टिव है, वो क्या करता है, अब यहाँ पे आप देखो Z इफेक्टिव यहाँ पे कितना हो जाएगा, वी आर जस्ट एज्यूमिंग दिस फॉर अवर सेक ऑफ कन्वीनियंस। एक्चुअली अगर आपको Z इफेक्टिव निकालना है तो स्लेटर्स रूल्स हैं, उनसे आप निकाल सकते हो एक्यूरेट एग्जैक्ट क्या होता है, पर हमें खाली अभी समझना है, तो उसके लिए हम ऐसे समझ रहे हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3, इट इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, here it is +4, एज्यूम करा है हमने ये, है ना। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 4 5 +6 +7 +8 +9, here it is +10। सो ये हमारा Z इफेक्टिव। अब देखो आप, सीधी सी बात है, Z इफेक्टिव आप देख रहे हो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, इसको आप एक मैग्नेट की तरह समझ सकते हो, जो बाहर के इलेक्ट्रॉन को या आयरन नेल्स को अपनी तरफ खींच रही है ना, क्योंकि एटॉमिक साइज तो सब में सेम ही था, 2 ही शेल थे, ठीक है, इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे Z इफेक्टिव का वेरिएशन होने लगा, तो क्या होगा कि Z इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, इस जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा इन इलेक्ट्रॉन्स को, और जितना ज्यादा इसका Z इफेक्टिव की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा।
सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस फ्लोरीन, तो क्या होगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, और जितना ज्यादा वो खींचेगा अपनी तरफ तो क्या होगा, थोड़ा सा श्रिंक तो हो ही जाएगा ना, है ना। तो ग्रेजुअली डिक्रीजेस, इसलिए बोला गया है कि धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी जेड इफेक्टिव की पावर बढ़ती जा रही है, +3 +5, तो धीरे धीरे वो जो सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, जो जेड इफेक्टिव है, वो हर चारों तरफ से उसको खींचेगा, और खींचेगा तो क्या होगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा आपका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा श्रिंक हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, यानी इधर से इधर जाने पे क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीजेस, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस स्लोली, है ना। जेड इफेक्टिव भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, +1 +1, तो ग्रेजुअली डिक्रीजेस एज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। तो ये रीजन हो जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जो आपकी जो नॉर्मल गैसेस होती है, या जिनका ऑक्टेट पूरा कंप्लीट होता है, उनका जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा होता है इससे, प्रीवियस मतलब हेलोजन से। तो इनका जो साइज है वो थोड़ा ज्यादा होता है, ये एक एक्सेप्शन भी है, और ये आप वैसे याद भी रख सकते हो, क्योंकि बिकॉज इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका ऑक्टेट कंप्लीट है बिकॉज दे आर स्टेबल, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसलिए क्या है कि इनका जो एटॉमिक साइज है वो हेलोजन से थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। इसका इससे ही रहेगा, यहाँ पे आप इस तरह से भी, ठीक है। और बाकी लेकिन सबसे ज्यादा जो साइज रहता है वो किसका रहता है, आपका जो पहला आपका एलिमेंट है, ठीक है। जो एल्कली मेटल्स होते हैं आपका, उनका साइज होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज करते रहते हैं। तो होप आपको ये कंसेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया होगा कि आखिर ये हो क्या रहा है ना। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, आपके माइंड में स्ट्राइक कर रही होगी वो चीज, तो वो ये है कि मैंने आपको जैसे बताया था कि एटॉमिक साइज, तो अगर हम देखें कि नीचे जाने पे क्या होगा, जैसे डाउन द ग्रुप जाने पे, और हम बात कर रहे हैं अक्रॉस द पीरियड की, दोनों की हमने डिस्कस करी थी। तो एटॉमिक साइज हमने बता ही दिया था कि क्या होता है, उसकी यूनिट्स वगैरह अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो आगे फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होता है, और अक्रॉस द पीरियड जाने पे क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना था। तो हमने बोला था कि डाउन द ग्रुप जाने पे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है एटॉमिक साइज, इंक्रीजेस। तो वाई इंक्रीजेस, क्वेश्चन ये है वाई इंक्रीजेस। तो इसका आंसर ये है, देखो कि इंक्रीज इसलिए करता है, एक तो दो प्रॉपर्टीज पे ये डिपेंड करता है, पहला है आपका जेड इफेक्टिव और दूसरा नंबर ऑफ शेल्स। तो एक तो ये है कि नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं आपके डाउन द ग्रुप जाने में, अभी हमने देखा भी था, इंक्रीजेस, है ना। अच्छा, जेड इफेक्टिव भी तो इंक्रीज करता है भाई। आप देखो नीचे जब जा रहे हो तो सीधी सी बात है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं या एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी तो बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन्स और जेड इफेक्टिव का कुछ रिलेशन डायरेक्ट का ही है, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, अज्यूम कर रहे हैं। तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, तो अब तो आपको हो गया कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो कॉन्ट्रेक्शन होना चाहिए। बट बट आप ये देखो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेल है ये भी तो इंक्रीज हो रहे हैं ना, एंड दिस इफेक्ट इज, ऐसे बोल सकते हैं हम, वन इज डोमिनेंट ओवर टू। सो जो पहला वाला इफेक्ट है वो ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है सेकंड से, तो वो उसको ओवरकम कर जाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, हम इसी से देखेंगे, ठीक है। जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज हो रहा है बट दिस इज माइनर एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ शेल, क्योंकि जब शेल ही इंक्रीज हो गए तो साइज ज्यादा बढ़ गया ना। ऐसे ही अगर हम अक्रॉस द पीरियड की बात करें तो वहां पे भी दो इफेक्ट हम देखेंगे, पहला क्या है, नंबर ऑफ शेल, यहाँ पे क्या रिमेन सेम, अक्रॉस द पीरियड तो सेम ही रहते हैं, लेकिन जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। अभी हमने चेक भी करा था क्यों हो रहा है इंक्रीज, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, तो इफेक्ट 2 इज डोमिनेंट ओवर 1। तो इधर हमें देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले को देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ शेल यहाँ तो सेम है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली डिक्रीजेस ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट। सो आई होप आपने मतलब अच्छे से ये वीडियो देखा है और अच्छे से आपको समझ में आया है कि एटॉमिक साइज क्या है,
अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये स्टार्ट ही हुआ है, और आगे भी मतलब मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और ऐसे नए नए कंसेप्ट्स और अच्छे से एक्सप्लेन करके मैं आपको शेयर करूँ, आपके साथ शेयर करूँ। और मुझे भी आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा इस वीडियो को देख के, अपने कमेंट्स और लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।